Hello, my dear students of 10th class. Welcome you in the third lecture of metals and non-metals. ਤੀਜੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੈਟਲਸ, ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵੋਕੈਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, दोनों वोकैब्स यानी कि इंग्लिश प्लस पंजाबी। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स डिल्यूट। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਤ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਡਿਲੂਟ ਐਸਿਡ ਲਿਖਿਆ, ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਪਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ प्लस पंजाबी दोनों च लिख दिनी आ। विच गैस इज लिबरेटेड? केड़ी गैस लिबरेट हुंदी है? विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ metals with acid, during the reaction of metals with acids। और मेरी गल सुनो जी, ਨਾਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी। तो उत्तर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 3-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ HCl ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। जिंक प्लस HCl ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, जिंक क्लोराइड ਨਿਕਲਿਆ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਲਸ HCl देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ਅਲਮੀਨੀਅਮ क्लोराइड प्लस ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਇਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਯੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਨੇਵਰ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ HNO3 ਹੈ that is very good oxidizing agent। HNO3 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਹੈ। और ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ H2 ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ H2 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ NO2 ਜਾਂ N2O 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦਿਸ ਵਨ। परंतु जिदा मैग्नीशियम है या मैंगनीज है, वो जेडे पतले डिल्यूट HNO3 नाल प्रतिक्रिया करके H2 बार जेडे है वो कट देंदे ने। ठीक है ना? तो इसलिए उन्हां दी आपां रिएक्शन कर सकते हैं। इत्थे आपां एक चीज़ होर मैं तुहानूं मैंशन करना चाहांगी कि जेडे Cu है, Ag है, मरकरी है, यानी कॉपर, सिल्वर ते मरकरी, दीज डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स। ये जेडे पतले एसिड्स दे नाल किरिया नहीं करते, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो जी अगे गल करते हैं रिएक्शन ऑफ मैटल्स विद सॉल्यूशन एंड अदर मैटल्स। ठीक है बेटा जी, एक फॉर्मूला मैं तुहानूं होर दसना चाहनी हाँ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पास, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्वा रिजिया। ठीक है जी। एक्वा रिजिया काहदा मिश्रण बनिया हुंदा है? ठीक है, इनू आपां पंजाबी च कह दिंदे आ एक्वा रिजिया।
ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन जिहड़ा है पास च पूछा जाता है। एक्वा रिजिया जिहड़ा है बेसिकली एक इहदा मतलब है लैटिन वर्ड है, इहदा मतलब है रॉयल वाटर। इहदा मतलब की है रॉयल वाटर एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय 3:1 रेशियो। 3:1 रेशियो किदी HCl एंड HNO3 दी। 3:1 रेशियो HCl ते HNO3 दी, ठीक है जी। एक गोल्ड नू भी अपने विच घोल लैंदा है, मतलब इन्ना ज़्यादा समर्थ है, इन्ना ज़्यादा रॉयल तेजाब हुंदा है कि अगर तुसी शक्तिशाली यू कैन से कि इट ईजिली कैन डिसॉल्व गोल्ड इन इट, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक्वा रिजिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पास। और रेशियो पूछी जाएगी तुहानू 3:1 रेशियो। अगे गल करांगी रिएक्शन ऑफ मैटल विद सॉल्यूशन एंड अदर मैटल्स। धातवी लूना दे घोलां नाल धातां की प्रतिक्रिया करदियां हैं। यू कैन राइट इन पंजाबी अगर तुसी लिखना चाहते हो रिएक्शन ऑफ मैटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मैटल सॉल्ट्स। मैटल ए मान लो, मैटल ए इत्थे आपां आयरन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन आपां ले लिया जी कॉपर सल्फेट, ते ये रिएक्शन हुई है ना। पेपर च बहुत ये पूछा जाता है रिएक्शन क्यों हुई। अगर ये रिएक्शन आपां करदे कि Cu + FeSO4 ते दसो ये रिएक्शन हुंदी तो ये रिएक्शन नहीं होनी सी। किद्दां जिहड़ियां धातां ने वो जिहड़ियां लूणा दे घोलां दे नाल प्रतिक्रिया करदियां, वेरी इंपॉर्टेंट। और इहदे लई तुहानू एक सीरीज याद करनी पैगी बेटा जी, जिन्नू आपां नाम दिंदे आ किरियाशीलता लड़ी। की नाम दिंदे आ जी? किरियाशीलता लड़ी। और वी कैन कॉल इट रिएक्टिविटी सीरीज। ये तुहानू सच याद करनी पएगी। और इहदा एक बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं अपने चैनल ते पूरी वीडियो बनाई हुई है, पर इत्थे भी मैं तुहानू याद करन लई ना एक हिंट दे दिंदी हां। सब तो पहले तो तुहानू ये पता होना चाहिए कि किरियाशीलती लड़ी हुंदी की है। व्हाट इज बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज? ये वो सूची है। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। पहले मैं इंग्लिश च पढ़ देनी हां। इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। बेटा डिक्रीजिंग एक्टिविटीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा उत्ते है वो सब तो ज्यादा किरियाशील है, सब तो वध, ठीक है जी। और जिहड़ा सेंटर च है दैट इज घटदी, और ऑब्वियस है नीचे आके इट इज सब तो घट किरियाशील, ठीक है जी, सब तो घट किरियाशील। हुण तुहानू जे तो तुहानू ये लड़ी आंदी है तो पेपर च तुसी बड़ी आसानी नाल आंसर दे सकते हो। किद्दां कि जिद्दां हुण मैं कहां कि दसो जी Fe + CuSO4 की रिएक्शन होनी है, जिन्नू ये लड़ी आंदी वो देखेगा कि Fe ऊपर है तो Cu थल्ले है, यानी Fe च इन्नी ताकत हैगी कि वो Cu नू रिप्लेस कर दे ते ये किरिया होएगी, ठीक है बेटा। पर जे मैं तुहानू ये कहां कि ये किरिया होएगी ये वाली Cu + FeSO4, ते जेड़े बच्चे नू ये सीरीज आंदी है वो देखेगा कि नहीं जी Cu तो थल्ले है ते Fe ऊपर है, इहदा मतलब Cu घट किरियाशील है, Fe नू नहीं डिस्प्लेस कर सकता। इहदा मतलब ये रिएक्शन नहीं होएगी। दिस रिएक्शन कैन नॉट हैपन, ठीक है बेटा। पर व्हाट इज द डिफरेंस? उस वही बच्चा ये क्वेश्चन दे आंसर कर पाएगा जिन्नू ये सीरीज याद है। और इनू याद करन दा एक बड़ा अच्छा तरीका मैं दस्सिया होया मेरे चैनल ते, मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक पा दांगी जां उत्ते आई च तुहानू लिंक पा दांगी। कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने कार मांगी, केड़ी कार मंगी? मैं ज्यादा इत्ते डिटेल नहीं जावांगी बिकॉज पूरी वीडियो है चैनल ते। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी। इत्थे ना SN हुंदा है, तुहानू नहीं है 10th दे लेवल दा। सनी लियोनी, SN इज फॉर 10। सनी लियोनी पादुकोण है, ठीक है जी। ये तो मैनू लगता है कि सारियां एक्ट्रेसेस दे नाम है और बहुत आसानी ना तुसी याद करोगे। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, सनी लियोनी पादुकोण है। और थल्लो किद्दां याद करना आपां? AU इज गोल्ड। AU इज गोल्ड, सोना, सिल्वर इज चांदी, ठीक है जी। सोना चांदी और हनी च्यवनप्राश। एड सुनते हैं ना आपां, बड़ी कॉमन जी एड है ये। क्यों? सोना चांदी हनी च्यवनप्राश। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, सनी लियोनी की है जी पादुकोण है, सोना चांदी हनी च्यवनप्राश, ठीक है जी। इदां तुसी ये सीरीज याद करनी है। मैं पंजाबी च भी इसकी डेफिनेशन लिख देनी आ। किरियाशीलता लड़ी वो सूची है, अगर तुसी चाहते हो मैं लिख देनी आ, वो सूची है
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਚ ਕੀ मतलब, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ यानी कि ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਚ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, हनी मीन्स मरकरी, च्यवनप्राश। सब तो घट की है जी, किरियाशील है। ठीक है, ये जिहड़ी रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई गल ही नहीं कर रही, रोज दी सिर्फ तुहानूं 2 रिएक्शंस करवा रही हाँ। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिहड़ी अगली रिएक्शन आपां करनी है वो हैगी है जी धातां ते अधातां किवें प्रतिक्रिया करदियां। धातां ते अधातां किवें प्रतिक्रिया करदियां, यानी कि रिएक्शन ऑफ मैटल्स विद नॉन मैटल्स। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਯੌਗਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈप्टर और ਆਪਾਂ बड़ी अच्छी तरह करांगे ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ 10-12 ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਪੜੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ 에ਅਰ ਪੜੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਪੜੀ। ਤੀਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਲੂਟ ਐਸਿਡਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? दिस इज द बेस ऑफ द +1 कि +1 च तुहानू एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेक्चर, एक मैटल्स और मतलब अगर तुसी +1 च नॉन मेडिकल या मेडिकल विल जाना है तो दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हां नू तुसी डिनाई नहीं कर सकते। सो बेटा जी ध्यान ना पढ़ो जिन्ना तक तुसी घर हो, सेफ रहो। मिलते हैं तुहानू अगले लेक्चर च। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।